students, welcome back all of you. Now today we are going to learn about accounting treatments at the time of retirement. Accounting treatments of goodwill. Previous lecture में हमने सीखा था कि how to give effect to the retiring partner's capital account with the share of goodwill, which is compensated by gain of continuing partner. Now revaluation of assets and liabilities. चैप्टर 4 and 5 दोनों चैप्टर में हमने सीखा है कि जब भी पार्टनरशिप डीड जब भी चेंज होता है then they have to change their P&L ratio as well as their share of goodwill and capital also. जब भी कोई अगर पार्टनर नया एंटर होता है या तो कोई पार्टनर बिजनेस में से रिटायर हो जाता है या तो फिर उसकी डेथ हो जाती है, कंटिन्यूइंग पार्टनर हैव टू चेंज देयर P&L रेशियो. ऑटोमेटिकली उसके जो शेयर है प्रॉफिट और लॉस का वो चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ रिटायरमेंट और एडमिशन. सो अगर पार्टनरशिप डीड चेंज हो रहा है तो दे हैव टू रीवैल्यूएट देयर असेट्स एंड लायबिलिटीज, राइट. तो असेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यूएट करना पड़ता है, जिसका ये चेंजेस जिसके वेरिएशंस रिकॉर्ड होते हैं इन द रीवैल्यूएशन अकाउंट. अगर increase in asset and decrease in liabilities and provision is credited to revaluation account. अगर asset पे increase हो रहा है या तो फिर liability decrease हो रही है या तो फिर कोई भी provision है तो वो होता है revaluation account में credit side. Decrease in asset and increase in liability and provision is debited to the revaluation account. अगर asset में decrease हो रहा है और liability increase हो रही है then the value is debited to revaluation account. Net profit or loss of revaluation accounts is distributed among all the partners in their own profit and sharing ratio in their capital or current account. Profit and loss जो है revaluation account का, according to profit and loss it is debited or credited to partners capital or current account. Assets and liabilities will be shown in the new balance sheet at the new values. And last में जो balance sheet बनेगी after retirement of partner, new balance sheet में सारी assets and liabilities की new value record की जाएगी. उसके बाद है distribution of reserves and accumulated profit and losses. Opening balance of capital account and credit balance of current account on the date of retirement. Following amounts are credited to the retiring partner's capital account. अब जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसके कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी इफेक्ट दी जाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट. जिस भी डेट को वो रिटायर हो रहा है उसी डेट की ओपनिंग बैलेंस एंड करंट अकाउंट की जो उसकी क्रेडिट बैलेंस है वो लिखी जाएगी. Share in profit of revaluation account. Thereafter revaluation account का profit and loss. Profit हुआ है तो it should be credited to retiring partners capital account. Loss हुआ है तो it should be debited to that partners capital or current account. Share in reserves and undistributed profit. Reserve जितनी भी reserves है वो सारे distribute होती है among all the partners in their old profit and loss sharing ratio. और अगर कुछ भी expense या तो कंपेन एक्सपेंस जो भी हो रहा होता है वो उसके करंट और कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा और जो रिजर्व होगी वो उसके करंट एंड कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट. शेयर इन न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल. शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट. उसका प्रॉफिट जिस भी डेट से अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है और जिस डेट तक वो जो पार्टनर है वो बिजनेस में है उसी डेट तक का प्रॉफिट उसको प्रोवाइड किया जाए. सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द फर्म फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट. इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द पार्टनर्स लोन इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन द पार्टनर्स लोन एट रेट ऑफ 6% पर एनम till the date of retirement. Now following balances reduce capital, therefore they are debited to his capital account. ये अब तक हमने जो देखा वो सारे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखे जाते थे, अब डेबिट साइड लिखे जाते हैं. फर्स्ट इज डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट. अगर रिटायरिंग पार्टनर की करंट अकाउंट की डेबिट बैलेंस है तो वो डेबिट साइड लिखी जाएगी. उसके बाद है ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग.
शेयर इन अनडिस्प्यूटेड लॉस एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या तो फिर 50% शेयर इन ओल्ड गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म, शेयर इन लॉस ऑफ revaluation अकाउंट, लोन गिवन बाय द फर्म टू द रिटायरिंग पार्टनर। फिर कैपिटल अकाउंट में जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उन दोनों पार्टनर्स की बैलेंस टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके बैलेंस शीट में लिखी जाएगी और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका जो डिफरेंस आता है लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर वो क्या हो जाती है लोन। इट शुड बी डेबिटेड टू दैट रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, loan given by the firm to the retiring partner. The balance obtained by closing the retiring partner's capital account is amount payable to the retiring partner. The amount payable to the retiring partner is paid in cash fully or partly and balance of the unpaid amount is transferred to his loan account. या तो फिर उसको जितना कैश में पेमेंट किया जाता है तो डेबिट साइड कैश करके जितना पे हुआ है उतनी अमाउंट और बाकी की जो डिफरेंस आती है वो उसके लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। नाउ उसके बाद है इंटरेस्ट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। Unpaid amount out of the total amount payable to the retiring partner is transferred to his loan account if the rate of interest is payable on such loan is not mentioned in the partnership deed. The interest is payable at the rate of 6% per annum as per Indian Partnership Act 1932. जो रिटायरिंग पार्टनर की लोन होती है उसके ऊपर old partner, old firm, continuing partner have to pay interest if there is no clarification is included in partnership deed. Continuing partner have to give 6% interest per annum of retiring partner's loan. Now इलस्ट्रेशन के थ्रू हम समझे तो इलस्ट्रेशन नंबर 13 जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो 8 मार्क्स के सम पूछे जाते हैं उस तरह का सम है। आज हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट। इलस्ट्रेशन नंबर 13, the balance sheet of XYZ is given below on the 31st March 2016. X, Y and Z are the partners of the firm sharing profit and loss in the ratio of 3:3:2. This is old ratio. X, Y, Z. Old ratio is 3:3:2. Y retires on 1st April 2016. Y जो है वो रिटायर हो रहा है। First adjustment is land and building is to be valued at ₹2,20,000. अब सिक्स्थ जो एडजस्टमेंट है लास्ट उसमें द न्यू रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग एक्स एंड जेड इज डिसाइडेड 1:1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेते हैं गेनिंग रेशियो बिटवीन कंटिन्यूइंग पार्टनर को फाइंड कर लेते हैं। द ओल्ड रेशियो इज 3:3:2, न्यू रेशियो इज एक्स एंड जेड 1:1। दे विल डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट the profit and loss in the equal proportion. Now the formula of gain is new share minus old share. X gain is equals to x का new share is 1/2 minus x old share. The total is 8. Here the total is 2. 3/8. अगर denominator में 8 लेंगे तो we have to multiply with 4. 2 4s are 8. Now 4 into 1 4. 3 as it is divided by 8. is equals to 1/8. Z का जो गेन है Z न्यू शेयर इज 1/2 minus Z old share is 2/8. Again denominator 8 multiply by 4. 4 1s are 4 minus 2 as it is divided by 8 is equals to 2/8. So the gaining ratio of continuing partner will be 1:2. फिर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको अगर गुडविल देनी है तो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैव टू गिव द गुडविल इन द रेशियो 1:2. नाउ फर्स्ट एडजस्टमेंट इज लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 2,20,000. लैंड एंड बिल्डिंग की न्यू वैल्यू है 2,20,000. बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग है 1,99,000. अब करनी है 2,20,000 इंक्रीज इन असेट. So land and building 1,99,000 plus increase 21,000. The difference 2,20,000 minus 1,99,000. So 21,000 जो है वो increase हो रहा है in the value of land and building. 21,000 increase. अब new value है land and building की 2,20,000. Revaluation account
क्रेडिट विथ 21,000, क्योंकि अगर इंक्रीज इन असेट हो रहा है तो इट शुड बी क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड इट इज बेनिफिट फॉर बिजनेस. सो फर्स्ट इफेक्ट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड एंड द सेकंड इफेक्ट अब बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी 2,20,000. नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 30,000. मशीनरी की वैल्यू 30,000 क्या करनी है रिड्यूस. बैलेंस शीट में मशीनरी की वैल्यू है 1,80,000 माइनस रिड्यूस 30,000 इज इक्वल्स टू 1,50,000. ये जो 30,000 है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट इट शुड बी क्रेडिटेड डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट. एंड अब बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट जो प्रिपेयर करेंगे उसमें मशीनरी की वैल्यू आएगी 1,50,000. नेक्स्ट इज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी केप्ट एट 10%. बैलेंस शीट में डेटर 70,000 माइनस बेड डेट रिजर्व है 5,000. अब हमें बोला गया है कि बेड डेट रिजर्व यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी केप्ट 10% ऑन डेटर. द डेटर बिफोर डिडक्शन ऑफ बेड डेट रिजर्व इज 70,000. 70,000 के 10% जो है बेड डेट रिजर्व रखनी है. डेटर 70,000 माइनस बेड डेट रिजर्व 7,000 इज इक्वल टू 63,000. ये जो इफेक्ट है वो दी जाएगी इन द न्यू बैलेंस शीट. और दूसरी इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड इंक्रीज इन लायबिलिटी बेड डेट रिजर्व ऑलरेडी कैलकुलेटेड 5,000. अब हमें क्या करना है हमें तो रखनी है 10% 7,000. 2,000 क्या करनी है प्रोविजन बढ़ानी है. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड बाय ₹2,000 इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी. नेक्स्ट इज लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन इज एक्सेप्टेड एट 15,000. वर्कमैन कंपेंसेशन फंड का जो क्लेम है वो एक्सेप्ट किया है 15,000. हमारे पास इस फॉर्म के पास वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है ओनली 10,000 की. रिजर्व 10,000 की है, क्लेम एक्सेप्ट किया है 15,000. तो ये जो डिफरेंस है 5,000 उसको हम क्रिएट करेंगे विथ रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके हम ये जो क्लेम है उसको जनरेट करेंगे. वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 5,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड. एंड दूसरी इफेक्ट वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 10,000 बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड. ये दो इफेक्ट होंगे. उसके बाद है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹1,60,000. वाइज शेयर इन गुडविल इज टू बी एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड जेड. फर्म की गुडविल डिसाइड की गई है 1,60,000. 1,60,000 में जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसका शेयर कितना है 3/8. 1,60,000 into 3/8. So the business have to pay the share of goodwill of Y is 60,000. ये जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है वो रिटायरिंग पार्टनर को 60,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल उसको पे करेंगे इन द रेशियो ऑफ गेनिंग रेशियो. 60,000 is distributed among X and Z in the ratio of 1:2. 60,000 into 1/3. 20,000 is paid by X and 60,000 into 2/3. 40,000 is paid by Z. The journal entry will be X capital account debit 20,000, Z's capital account debit 40,000 to Y's capital account 60,000. अब जो Y रिटायर हो जाएगा उसके बाद जो फर्म का प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा अमाउंट ओनली एक्स एंड जेड. तो उसको क्या होगा प्रॉफिट होगा. तो वो प्रॉफिट को वो कंपेंसेट करेंगे एज ए शेयर ऑफ गुडविल टू द रिटायरिंग पार्टनर. तो इस तरह से यहाँ तक हमने इफेक्ट दी है. होल एडजस्टमेंट की इफेक्ट हमने दे दी है. अब जर्नल एंट्री है. जो भी हमने इफेक्ट दी उसकी जर्नल एंट्री यहाँ पे लिखी गई है उसको आप रीड करो और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम इस सम को कंप्लीट करेंगे. तब तक के लिए जो हमने सीखा है उसको रिवाइज करते रहिए और जो कैलकुलेशन जो भी इलस्ट्रेशन सम बोर्ड पे लिखा जाता है उसको आप अपनी बुक में लिखते रहिए.
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस सम को कंप्लीट करने। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।